we have been continuously doing this agitation like for the past 2 months as a banner of Una Dalit Atyachar Ladat Samiti and Rashtriya Dalit Adhikar Manch. But government of Gujarat is so stubborn and absolutely Dalit, anti-Dalit mentality is reflected in their approach that they are not ready to accept any of our demands. They are not ready to indulge even in dialogue. They accepted all the demands of Patidar community. They accepted their unconstitutional demands as well. But they are, suffering from the anti-Dalit mentality, so they are not accepting any of our legitimate demands. So as a last recourse, as a last alternative, we have to go for this Rail Roko program, which we will be doing at Maninagar Railway Crossing on 1st of October. And I'm appealing, it is my urge to the entire nation, to the activist fraternity, to the Dalit community, that 1 अक्टूबर के दिन हज़ारों की तादाद में वो लोग अहमदाबाद की सड़कों पर उतर आए, मणिनगर में उतर आए और वहाँ पे चक्का जाम करे और रेल को रोक के दिखाए. और कुछ दिन पहले मैंने दिल्ली में से अनाउंसमेंट किया था कि यदि आपको मुसाफरी नहीं करनी है तब भी आप लोग ट्रेन पकड़िए and go for mass level chain pulling. That appeal I am withdrawing because there is an scope for violence which we don't want to resort to, and there are elements who would wish that we indulge, people indulge into violence, and that credit goes to us, which we must avoid, we want to avoid. हम लोग सविनय कानून भंग करेंगे तो उन सारे लोगों को अपील है कि वो पूरा देश की जनता, all of the people must join us for Rail Roko here at Ahmedabad at Maninagar on 1st of October. Right. So we are withdrawing this call for mass chain pulling. Okay. At the same time, congratulations on your victory at Saroda, which is with respect to 200 bighas of land, and this maybe shows a little bit of initiative from the government, though it is a small victory. But do you think that this Rail Roko at this time, when we see some kind of initiative from the government, is still okay? Wouldn't you want to negotiate with the government with respect to more land, or have you been negotiating with the government already? Have any kind of letters or any kind of conversations happened with the government? We have already submitted a memorandum on 23rd of the last month, but there is absolutely no response from the government. They are not ready to accept any of the demands. As far as the case of Saroda is concerned, it's a small piece of land. It's about 200 bighas of land. Like, what is our demand? 5 acres of land be allotted to all the landless Dalit people. And assume for the sake of argument that government is not inclined to do so. Then in that case, we are also ready to make this prayer that all the government wasteland, there is a provision under revenue law that all the government wasteland can be allotted to SC, ST and OBC people. Do it. If you can't grant 5 acres of land, then tell us how much you can grant. They are not ready to accept any of the demands. They are not ready to give any BPL card, even housing plots. They are just not ready to have a dialogue with us. So then we will continue our agitation come what may. Thank you. 5 एकड़ जमीन की डिमांड को लेकर शायद गुजरात के दलित आंदोलन के इतिहास में पहली बार दलित समुदाय के लोग हजारों की तादाद में मोदी जी जहां से चुनाव लड़ रहे थे उस मणिनगर से 1 अक्टूबर के दिन दोपहर को 12 बजे रेल रोको आंदोलन करने जा रहे हैं. पिछले 2-2.5 महीने से जिस तरह से हम लोगों का आंदोलन चल रहा है, जगह जगह पर हम लोगों ने जनसभाएं की, रैलियां की, डेमोन्स्ट्रेशंस किए, एजिटेशन किए, दलित अस्मिता यात्रा निकाली अहमदाबाद से ऊना तक की, 2 तगड़े जन सम्मेलन किए. उसके बावजूद हमारी जो भी लेजिटिमेट डिमांड्स है, न्यायी डिमांड्स है, उसको लेकर सरकार के पेट का पानी हिल नहीं रहा है. वो एक भी डिमांड्स न तो मानने को तैयार है, न तो उसको लेकर हमारे साथ संवाद करने को तैयार है. आउट ऑफ वे जाकर उन्होंने पाटीदार समुदाय की डिमांड्स न केवल मानी, लगातार उनके साथ संवाद करते रहे. लेकिन जिस तरह से उनका एंटी दलित रवैया रहा है और अब तक दलित विरोधी उनकी जो मानसिकता गुजरात की सरकार की दिखी है, लग नहीं रहा है कि वो हमारे साथ संवाद करे. हमारी जो भी लेजिटिमेट डिमांड्स है उसमें से एक भी डिमांड को मानने को तैयार नहीं है. हम लोग ये भी डिमांड किया था कि कुछ अरसे पहले जब गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल हुआ करती थी और उन्होंने ऊना के पीड़ित जिस मोटा समटियाला गांव से आए थे उस मोटा समटियाला गांव में गए और वहां पर उन्होंने देखा कि दलित समुदाय के भाई बहनों के पास रहने के लिए घर भी नहीं है और बीपीएल कार्ड भी नहीं है. तो हम लोगों ने 5 एकड़ जमीन के साथ साथ ये भी डिमांड किया कि गुजरात के सारे उन गाँव का सर्वे हो और फाइंड आउट किया जाए कि किन किन लोगों के पास बीपीएल कार्ड नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है. लेकिन सरकार न तो 5 एकड़ जमीन देने को तैयार है, न तो बीपीएल कार्ड देने को तैयार है, न तो रहने के घर देने को तैयार है. हमारी ये भी डिमांड थी कि एट्रोसिटी के कानून में जो भी प्रोविजन है उसके मुताबिक सारे जिलों में स्पेशल कोर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाए. वो भी नहीं हो रहा है.
गुजरात में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सब प्लान के जो भी पैसे हैं वो जनरल पर्पस में खर्च कर दिए जा रहे हैं, वो ऐसा ना हो और वो सारे पैसे दलित और आदिवासियों के हितों के लिए ही खर्च हो, ऐसे एक लेजिस्लेशन और कानून बने। वो भी डिमांड्स को लेकर सरकार की ओर से कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है। गुजरात में रिजर्वेशन एक्ट नहीं है, रिजर्वेशन एक्ट बने, वो भी डिमांड सरकार को मानने को तैयार नहीं है। तो हमारी एक भी डिमांड सरकार आज तक इतने लंबे अरसे से चल रहे एजिटेशन के बावजूद भी मानने को तैयार नहीं है। उसकी वजह से एज आ लास्ट रिकोर्स दूसरा कोई चारा हम लोगों के पास नहीं है, इसलिए हम लोगों को रेल रोको आंदोलन की दिशा में जाना पड़ रहा है। हम लोग पूरे देश के दलित संस्था, दलित संगठन, सारे संघर्ष के साथ ही प्रगतिशील लोगों को अनुरोध करते हैं, अपील कर रहे हैं कि 1 अक्टूबर के दिन दोपहर के 12 बजे मणिनगर रेलवे क्रॉसिंग में, मणिनगर का जो रेलवे क्रॉसिंग है वहां पर हजारों लाखों की तादाद में पूरे देश में से जमा हो और गुजरात की सरकार के नाक में उतना दम कर दे कि हमारी जो भी लेजिटिमेट डिमांड्स है उसे मानने के लिए सरकार के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो। मैंने थोड़े दिन पहले मैं जब दिल्ली में था तब दलित स्वाभिमान रैली के प्लेटफॉर्म पर से ये अनाउंस किया था कि जो लोग भी अपने अपने स्टेट में मास लेवल पे चेन पुलिंग करे, ये जो मेरी अपील थी, ये अपील को मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। मैं व्यापक जन समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए और कानून व्यवस्था का कोई बड़ा प्रश्न खड़ा ना हो, इसलिए इस अपील को विड्रॉ कर रहा हूँ। हम नहीं चाहते कि हम लोगों ने आज तक कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही ये कानून चलाया है। हम लोगों के कुछ सोर्सेज से ऐसी खबर मिल रही है कि सरकार की ऐसी मंशा है कि वायलेंस हो और हम लोगों के साथ वायलेंस के जोड़कर इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जाए। तो हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी कीमत का वायलेंस हो। हम लोग मणिनगर में 1 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे मणिनगर रेलवे क्रॉसिंग पे सभी ने कानून भंग करेंगे, लेकिन कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही हमारा आंदोलन चलेगा। हम लोग वहां पर पटरी पे बैठ जाएंगे हजारों की तादाद में, लेकिन किसी भी कीमत पे पटरी को हमारी उंगली का स्पर्श भी नहीं होगा, आसपास पड़े कंकड़ को भी स्पर्श नहीं करेंगे। पुलिस को यदि हमारे ऊपर लाठियां चलानी है तो चलाए, मुकदमे दर्ज करने तो करें, लेकिन दलित आंदोलन की ये धरोहर रही है, ये संस्कृति रही कि किसी कीमत पे कानून को हाथ में ना ले। तो हम भी कानून को हाथ में नहीं लेंगे। पुलिस के हाथ में होगा डंडा, हमारे हाथ में होगा भीम का नीला झंडा। हम कानून और संविधान के दायरे को कभी भी नहीं तोड़ेंगे। लेकिन अब वक्त आ गया है, न केवल गुजरात लेकिन पूरे देश का जन समुदाय हमारे साथ जुड़े और हजारों और लाखों की तादाद में गुजरात में आए और 1 अक्टूबर के दिन जमकर गुजरात मॉडल का एक्सपोजर हो, उनको पता चले ये कितना जन विरोधी है और कितना दलित विरोधी है। गुजरात मॉडल को एक्सपोज किया जाए। गुजरात की धरती पे गुजरात मॉडल का हम लोग जमकर पीएम करेंगे, पोस्ट मॉडर्न करेंगे। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि 5 एकड़ जमीन की हमारी जो डिमांड है, यदि सरकार वो मानने को तैयार नहीं तो सरकार बताए वो कितने एकड़ जमीन बांट सकती है, लेकिन सरकार उसको लेकर कोई संवाद की भूमिका मानने को तैयार नहीं है। पाटीदार समुदाय के ऊपर जो गलत मुकदमे लगे थे वो सारे वापस ले लिए, लेकिन दलित विरोधी मानसिकता के चलते दलित समुदाय के साथियों पर धौलका और अमरेली में जो गलत मुकदमे दर्ज हुए उसमें से एक भी मुकदमा वो लोग वापस लेने को तैयार नहीं है। सारे के सारे कांग्रेस और भाजपा के जो विधायक और एमपी है वो भी इस मुद्दे को लेकर मौन बैठे हैं, उनकी ओर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो हम लोगों को, जैसा कि मैंने बताया, एज अ लास्ट रिकोर्स, दूसरा कोई चारा ना रहने की वजह से एज अ लास्ट रिकोर्स हम लोगों को ये रेल रोको करना पड़ रहा है। मैं पूरे देश की जनता की प्रोएक्टिवली सामने से माफी मांगता हूँ। बहुत से हजारों की तादाद में मुसाफिर को दिक्कत होगी, खास करके जो हावड़ा एक्सप्रेस है और शताब्दी एक्सप्रेस में से जो मुसाफरी करने वाले लोग, उनसे मेरी विनती, कृपया उस दिन आप मुसाफरी ना करें। आप लोग दिक्कत होगी, हम लोगों के पास दूसरा कोई चारा नहीं, इसलिए हम लोगों को ये रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। हम लोगों की भी जो दिक्कत है वो भी आप समझिए, हम भी आपका दर्द और तकलीफ समझते हैं, लेकिन सरकार का ये जो रवैया है एक भी डिमांड को मानने को तैयार नहीं, इसलिए हम लोगों को रेल को रोकना पड़ेगा। भीम के रथ को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सरकार की रेल के रथ को रोकेंगे। जहां तक 5 एकड़ जमीन की डिमांड का सवाल है, मैं तो ये तक कहने को तैयार हूं, यदि सरकार 5 एकड़ जमीन का आवंटन करना नहीं चाहती तो सारी की सारी सरकारी पट्टर जमीन, गवर्नमेंट वेस्टलैंड जो SC ST OBC में बांटने की योजना है, उसी योजना के चलते वो सारी जमीनों का SC ST OBC में आवंटन कर दो। आप वो भी करने को तैयार नहीं है। एक BPL कार्ड भी दलितों को देने को तैयार नहीं है, रहने के प्लॉट देने को लिए तैयार नहीं। तो हम लोग क्या करें? आज़ादी की इतने सालों के बाद यदि गुजरात की सरकार गुजरात मॉडल के दावों के बावजूद यदि एक जमीन का टुकड़ा देने को तैयार नहीं है, तो फिर तो हम लोगों को रेल रोको करना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर हम लोग
रेल रोको करने जा रहे हैं। साथ साथ मैं आपको बीच में ये बात भी रखना चाहूँगा कि आज हम लोग दोपहर को विजय रूपाणी की जो ऑफिस है वहाँ पर और चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में भी एक आवेदन पत्र देंगे। उनको कहेंगे कि हम लोगों ने 23 तारीख को भी एक आवेदन पत्र दिया था, आप लोगों ने हमारे साथ कोई भी संवाद नहीं किया, कोई भी वार्तालाप नहीं किया, कोई भी डिमांड आप मानने को तैयार नहीं। तो हम लोग उनसे सरकार को आज कहने जा रहे हैं कि अब तो जमकर मुकाबला होगा। 1 अक्टूबर के दिन हजारों की तादाद में दोपहर के 12 बजे पूरे भारत के संघर्ष के साथी और दलित समुदाय के लोग रेल रोको करने के लिए सड़कों पर उतर आएंगे मणिनगर में। जिनमें कि ये जो रेल रोको आंदोलन जो किया जा रहा है 1 अक्टूबर, ये देश भर में कराया जाएगा या कौन सा? नहीं, इसीलिए हम लोग ये क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले देश में ऐसी अपील की थी कि मास लेवल पे चेन पुलिंग हो और जगह जगह पर रेल रोको हो। उसकी बजाय उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी दिलचस्पी है इस आंदोलन को बदनाम करने की, इस आंदोलन को तोड़ने की, कि वे लोग वायलेंस करें और उसकी डिस्क्रेडिट हमको मिले। हम नहीं चाहते। हम सभी ने कानून भंग करेंगे, लेकिन संविधान और कानून का दायरा किसी कीमत पे नहीं तोड़ेंगे। तो पूरे देश के संघर्ष के साथियों को और दलित समुदाय के भाई बहनों को हमारी अपील है, वो सारे के सारे लोग हजारों लाखों की तादाद में गुजरात मॉडल का जमकर पोस्टमार्टम करने के लिए, रेल रोको करने के लिए अहमदाबाद में आए, मणिनगर में आए। लेकिन अगर पब्लिक बहुत ज्यादा जमा हो जाती है, वो आपकी बात नहीं मानते और कुछ नुकसान करते हैं, तो जवाबदारी किसकी हो? उसकी जवाबदारी संपूर्ण तौर पे गुजरात की सरकार की रहेगी। मैं कल भी अनुरोध करता हूं, आज भी अनुरोध करता हूं, किसी कीमत पे दलित आंदोलन की संस्कृति नहीं रही कि वो संविधान और कानून का दायरा तोड़े। हम उसी संविधान के दायरे में रहकर ही हमारा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, सविनय कानून बन करके रेल को रोकेंगे और पूरे देश की जनता को हमारा अनुरोध है। लेकिन यदि सरकार की नीयत साफ होती तो हमारी कुछ तो डिमांड्स मानती। एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा मांग रहे हैं ना, कोई चांद तो मांग नहीं रहे। गुजरात मॉडल इतना भव्य और महान है, तो जमीन का एक टुकड़ा दो। यदि अदानी, अंबानी और एसआर को जमीन का आवंटन हो सकता है तो दलित, आदिवासी और ओबीसी को क्यों नहीं? हजारों एकड़ जमीन का जो आवंटन ऑलरेडी हो चुका है, वो भी जैसे दलित समाज की गरीबी और लाचारी का मजाक बनाया जा रहा हो, उस तरह से केवल कागज पे हुआ है, उसका भी फिजिकल पोजीशन नहीं दे रहे। तो इन सारी हमारी जो डिमांड्स है उसको लेकर सरकार की ओर से आज तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। पाटीदार समुदाय के साथ डायलॉग किया, एक से ज्यादा बार डायलॉग किया, तो हम लोगों के साथ ऐसा विरोधी मानसिकता क्यों? ये पाटीदार समाज के साथ सरकार डायलॉग करे और आप लोगों के साथ नहीं करी, इसके पीछे इसका उसकी वजह साफ दिख रही है कि आप दलित विरोधी मानसिकता से पीड़ित है। आप एक समुदाय के जो संघर्ष चल रहा है उसकी डिमांड्स आउट ऑफ वे जाकर भी मानते हैं, पैकेज डिक्लेयर कर रहे हैं। हमारी सारी डिमांड जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स है, जो लेजिटिमेट डिमांड्स है, उसको मानने को आप तैयार नहीं है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है आपका दलित विरोधी मानसिक रवैया। आपने सरकार के अंदर बात करने की कोशिश की? बिल्कुल। 23 तारीख को हम लोग गए थे, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में आवेदन पत्र दिया। वहां पर हमारे साथियों ने आत्माराम परमार से भी संपर्क किया था, जो बीजेपी के नेता है, दलित समुदाय से आता है। कोई भी रिस्पॉन्स आज तक सरकार की ओर से नहीं है। आज भी विजय रूपाणी जी को मिलने जा रहे हैं, उनकी ऑफिस में हम लोग ये आवेदन पत्र देने जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी को भी आवेदन पत्र देकर कहेंगे कि हमारी डिमांड्स को लेकर आपने अब तक कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो इसलिए विकल्प और कोई नहीं बचा है, तो हम लोग रेल रोको करने जा रहे हैं। अगर आज सीएम आपकी कुछ बातों मानने को तैयार हो जाएंगे तो आपके अपना आंदोलन विड्रॉ कर लेंगे? नहीं, रेल रोको की कॉल को लेकर हम लोग डेफिनेटली दूसरा कोई विकल्प खोजेंगे। यदि हमारी डिमांड्स को लेकर वो मानने को तैयार है, एक ऐसा नोटिफिकेशन डिक्लेयर करने को तैयार है कि इस तारीख से इतनी जमीनों की आवंटन की प्रक्रिया हम चालू करने वाले हैं, तो डेफिनेटली रेल रोको के कॉल को विड्रॉ करने के लिए हम सोचेंगे। सरकार के द्वारा धोलका और बदरका जैसे गांवों में जमीन आवंटन का काम स्टार्ट कर दिया गया है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? गुजरात में हर एक जिले में हर एक तहसील में हजारों एकड़ जमीन पड़ी है। ये तो केवल 200 बीघा जमीन का पट्टा है। जो जमीनों का आवंटन हुआ उसका पोजीशन मिले, वो तो संघर्ष हमारा लंबे अरसे से चल रहा है। हम तो दूसरी नई जमीनों का आवंटन हो वो डिमांड लेकर निकले हैं। तो वो टोटल जगह कितनी, आपकी डिमांड किस तरह की, और आज जो आवेदन पत्र देने जा रहे हो रूपानी जी को, उसके अंदर टोटल मुख्य डिमांड क्या है? मुख्य उसमें कितने उसमें जैसा कि मैंने अभी बताया कि सारी सरकारी पट्टर जमीन है जो SC ST OBC में आवंटन हो सकता है, आप कर दीजिए आवंटन। आप आवंटन की प्रोसीजर इनिशिएट तो करिए। एक दिन में, 2 दिन में, हफ्ते में, 1 महीने में हजारों एकड़ जमीन का आवंटन नहीं हो सकता, मालूम है, लेकिन आप कुछ भी प्रोसीजर इनिशिएट करने को तैयार नहीं है। कुछ तो हम लोगों को एश्योरेंस मिले कि आप जमीन का आवंटन करेंगे, अब तो कुछ भी देने को तैयार नहीं, आप बात करने को तैयार नहीं है, तो फिर रेल रोकेंगे। रेल रोको के लिए आपकी प्रमुख मांग, आपकी जो भी डिमांड है, वो ये जमीन ही है या 31 जुलाई को आपने जो डिमांड सारी, हाँ, वो सारी की सारी डिमांड है। उसमें से प्रमुख डिमांड जमीन के साथ साथ ये भी है
कि यदि आप 5 एकड़ जमीन ना बांट सके तो सरकारी सारी पड़तर जमीन का आवंटन करो। हर एक जिले में मेट्रो सिटी के कानून में जो प्रोविजन है उसके मुताबिक स्पेशल कोर्ट्स का गठन करो। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सब प्लान के पैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब सब प्लान के पीछे ही खर्च हो, ऐसे एक लेजिस्लेशन बनाओ। गुजरात में रिजर्वेशन एक्ट नहीं तो गुजरात में रिजर्वेशन एक्ट बने। सारे वो लोग जिनके पास रहने के घर नहीं उनको घर दिए जाए। सारे वो लोग दलित समुदाय के जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं उनको बीपीएल कार्ड दिया जाए। ये सारी डिमांड्स हम लोग लेकर निकले हैं। कल आपके साथ और कौन कौन नेशनल या स्टेट लेवल के एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं? कल 23 तारीख थानगढ़ में हम लोग जा रहे हैं, तो देखते हैं उसमें कौन लोग आ रहे हैं। अपने रेल लोगों के लिए रेल लोगों तो 1 अक्टूबर का दिन है, तो उसमें देश भर में से 15-20 प्रोमिनेंट फेसेस है जो एक्टिविस्ट फ्रेटर्निटी में वो लोग हम बताएंगे। अभी तो वो उनसे संवाद चल रहा है, वो भी आने वाले दिनों में उनके नाम डिक्लेयर करेंगे। जिग्नेश, पाटीदार आंदोलन को उनके नेताओं का समर्थन मिला हाँ था। भाई, तो दलित आंदोलन के आपके रेल रोको आंदोलन के अंदर आपके कोई भी नेताओं का समर्थन है? किन कौन नेता आपके साथ है? दलित नेता जो है चुने हुए कौन कौन आपके साथ है? चुने हुए नेता तो अपने मुंह पर उंगली रखकर ऐसे बैठे हैं, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इतने सालों में उन्होंने अपना मुंह खोला होता तो हम लोगों को आंदोलन करने की नौबत ही नहीं आती और हम लोगों को नहीं तो समर्थन भी नहीं चाहिए। हाँ, डेफिनेटली मैं ऐसा कहता हूँ कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपने बैनर, डंडे, झंडे, प्रतीक, सिंबल सब छोड़कर 1 अक्टूबर के दिन यदि मानते हैं कि हमारी डिमांड्स लेजिटिमेट है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को मैं जुड़ने के लिए आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ। लेकिन अपने बैनर, डंडे, झंडे, प्रतीक वो सब छोड़कर यदि वो कोस को सपोर्ट करते हैं तो वो आ सकते हैं, लेकिन इस मूवमेंट को हम पॉलिटिसाइज करने नहीं देंगे। कि जमीन को लेकर हाँ, अभी तक जिग्नेश। आपने कोई पीआईएल क्यों नहीं? अगर सरकार ने अभी तक दी नहीं है तो इसके लिए आपने कानूनी रूप से कभी डिमांड की, कभी पीआईएल की? जमीन का जो आवंटन ऑलरेडी हो चुका है और उसका फिजिकल पोजीशन नहीं मिला, उसको लेकर तो एक रिट पिटीशन गुजरात हाईकोर्ट में चल रही है, लेकिन बांटी हुई जमीन का फिजिकल पोजीशन वो केवल एकमात्र डिमांड नहीं है। जमीनों का आवंटन जो बंद कर दिया गुजरात की सरकार ने वो चालू हो दोबारा, वो हमारी प्रमुख डिमांड है। हाँ भाई जिग्नेश, गुजराती